उम्मीद करता हूं गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। वो तमाम दोस्त जो अभी तक आज के सेशन में आ चुके हैं, आप सबको वेलकम है आज के सेशन में मेरी तरफ से। और जो दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं उनमें से चंद एक के नाम लूंगा। स्पेशल सेशन है, आपको पता है कि हमारे साथ एक्सचेंज ऑन के जो है वो जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्सचेंज ऑन की सिक्योरिटी में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी उनको मैं दावत दूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा चंद दोस्त जो आ चुके हैं उनको वेलकम कर लेते हैं। शौकत राठौर साहब हैं, अमित कुमार जी हैं, इंजीनियर वहीद अख्तर साहब हैं, देवराम देसाई हैं, और मोहित जी हैं, त्रिनाथ कुंदू जी हैं, अर्जुन मंडिल जी हैं, के जी मंगल हैं, और साबिर खान हैं, बाबूलाल दिवासी हैं, चौधरी इरफान हैं, हीरालाल सुधार जी हैं, जुबैर अंसारी जी हैं, कन्याराम मीना जी हैं, आर एन कर्मा हैं, और धर्मेंद्रा जैन जी हैं, शमशेर अली हैं। सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, जस्ट वो टाइम ले रहा हूं मैं। सेशन थोड़ा सा देर से शुरू हुआ, और अभी हमारे साथ इस वक्त जो है वो गुलफाम सिद्दीकी हैं, सुभाष चंद्र हैं, और प्रमोद हैं, एमडी इम्तियाज हैं, तनवीर हैं, और जो है अकमल सिद्दीकी हैं, डॉक्टर मिश्रा हैं, आरपीएस सिंह हैं, सैयद माजिद हैं, नाहिदा रूमी हैं, मनोज कुमार जी हैं, आर के पंडित हैं, विलास भगवत हैं, और लुकेंद्रा सिंह हैं। आप सबका वेलकम है। बसंत कुमार हैं, और दनीश सिंह जी हैं, फुरकान सिद्दीकी हैं, जहीरुद्दीन अंसारी हैं, सज्जाद हैदर हैं। सज्जाद भाई मुझे टाइम नहीं मिल सका, आई विल कॉल यू सून। दीपंकर सरकार हैं, फिरोज हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं, और सतीश कुमार जी हैं, शकलदीप हैं, मनोहर सिंह जी हैं, और धर्मेंद्रा गुप्ता हैं, आनंद राम हैं, महेश शर्मा जी हैं, शकलदीप कुमार जी हैं, हरेश पटेल जी हैं, मुकेश दास जी हैं, वारिस फारूक हैं, और किशन जी हैं, नबीन सेन हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं, मंजीत कुमार, सुनील, डॉक्टर शिवराज सियाग, अरशद हुसैन, और पूर्णा प्रताप। आप सबका वेलकम है। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं दावत दूंगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर एंथनी, who is part of the exchange on security. So I would like him to invite here. Anthony, over to you, please. We would like to hear from you, and we will appreciate as much information as you will be providing to us. Thank you very much. Yes, Mr. ZEE, thank you very much. Let me see how many people is there. Oh, okay. We have around 800. That's cool. Well, to be honest, I prepared some notes, but I forgot it. I can't find it anymore, so I'll try to do my best to talk about Xchangeon security, if you guys agree. Yes, yes, sure. We are willing very much. Okay, perfect. Well, as mentioned, I'm Anthony. I have around, I would say, 10 years of experience in cybersecurity for crypto company and exchanges company. I've been implicated in some of the first MiCA license in Europe. To let you know, MiCA license is the license that allow an exchange or crypto company to operate in Europe. And now I'm proud to be the Chief Information Security Officer for Xchangeon and for this nice product and this nice team. Anthony, sorry to cut you out. Could you please turn on your camera, please? I can. Thank you. Okay. Give me a second. I can, because when I click on it, it's turned on, it's turned off. Do I have the right to open this? Because when I click on it, Yeah, it's you just open opened it. I just saw that there was a yes, yes, we can see you. Okay, perfect. Like this, you can see a face on a voice, and that's better for everyone. Well, as I said, my role is to technically secure the Xchangeon infrastructure and ensure that both the company and the exchange remain compliant with the regulation in the countries we are operating. So today, what I can do, I can talk about operational security,
and also about a little bit about compliance. But I'm not going to go about blockchain security and all of this. Let's focus on Xchangeon. That's the most important. As you know, cybersecurity has become a key focus for Xchangeon, and that's why I'm here. And not only because of regulation and the requirements, but also due to several high-profile incidents in the crypto and financial sector. For example, you remember maybe some major exchange breaches and data leaks that have highlighted the importance of strong defenses. I'm pretty sure you can find some article on this on Google News or something. And today, I would say that in the crypto industry and the exchange industry, we are not talking about cybersecurity anymore, but more about, I would say, cyber defense. There is a difference between the security and the defense. That's a huge difference. Let's talk a little bit about operational security, technical security, and compliance. Well, operational security or technical security is more about how we protect the exchange and the Xchangeon as a company, because on my scope, I have the exchange, but I also have the internal IT for Xchangeon, and what we do for it, and also for the compliance. I'll try to introduce you go through the regulation very quickly that applies to Xchangeon. Maybe before starting this, I'd like you to know that a company could be technically secure. I mean, technically secure, having some technically basis implemented in the products and in the company, but not being compliant. Or sometimes you also have fully compliant company or exchange, but with a very low cybersecurity level. So I want you to know that for Xchangeon, the goal is really to achieve both of it, the compliance and the technical cybersecurity. And thanks to the board of Xchangeon for giving us the means to achieve it. About compliance, well, as you know, as we are operating in certain jurisdictions, certain country, it requires us to meet specific cybersecurity framework. In Europe, for instance, we have the DORA regulation, and in the UAE, we follow the VARA framework. So if we talk about DORA, DORA is really focused on risk management and require us to apply a framework like ISO 27001, which is an international recognized cybersecurity standard, but also ask us to go further than this, than this standard. For example, the cybersecurity risk assessment that we have to do every year, we cannot use the standard of ISO. So what we're gonna do, we use another risk assessment methodology, and just to give you an overview about this cybersecurity risk assessment, it's a kind of internal pen test, but on paper. So it also includes our provider, our partner, and it's a huge work that we have to do and that we do every year. That is just an example, but on each ISO topic that we have to apply, we have to reinforce it. We have to reinforce the standard. So the standard is already high, but because of the regulation, we have to go higher than the standard. So that's for DORA. And if we talk about VARA, the regulation in the UAE, I would say I don't have too much to add, as it is almost the same as the European one. So once we are compliant with VARA, we are almost compliant with DORA. So yeah.
today we are actively working to meet this standard. Not to mention that if we talk about DORA and VARA, the regulation, it's not just box ticking. It's not just we say to the regulator, to the auditor, okay, we're done, we are compliant. It involves, I would say, continuous assessment, continuous improvement, and continuous audit, of course. And regarding the audit, we have a formal audit plan that includes multiple types of assessment. There is the one you should know, guys, is the pen test. Of course, we have the black box pen test, the gray box pen test. But not only this, we have the configuration audit. This is based on CIS International Guide. We have code review, code audit, and organizational audit. So for most of this, we collaborate with Hacken, but of course, we can collaborate with other any trusted cybersecurity partner. I've talked about the compliance. Let me give you some words and some basics about operational security. When I say operational, I'm talking about the technical part of the cybersecurity. So of course, for Xchangeon, it's just an overview there, but we have encryption at rest, on transit. It means that the traffic in the infrastructure is fully encrypted and cannot be read. So the database also are encrypted. So if someone come and try to steal the database, the guy won't be able to read it. So this also includes, of course, the key management. But as we don't want someone to have access to the database and to other any access, we have also implemented something called access control, and more specifically called role-based access control. So every person in the company or any partner that need to have access to the data is approved, and we ensure that he really needs it. And after this, of course, he will have access. And what we also do regarding the access control, we also have account review. I have it. Account review and privilege account review. So like this, we ensure that everything is right regarding access for Xchangeon. What I can say about backup, for example, so all critical assets are backed up, and included in the continuity plan. We also have a vulnerability management program, which is very important to us. For this, we have vulnerability detection tool, and when we detect vulnerability, we have a policy and plan to correct this. It's almost the same for the pen test. When we have the pen test, we have a plan and we correct it. For the development, this is something also that I can talk about a little bit. We have created what we call secure development policy. So this policy ensures that the security is already included when we create and where we update the product. So of course, this will include code review, I would say environment separation between test, staging, production, and all of this policy is audited during the audit I mentioned before. So yes, that's my last words, I would say. So we take cybersecurity seriously. We are constantly doing our best to improve our technical cybersecurity posture, protect our client data, and being compliant to all regulations that applies to Xchangeon. Thank you. Thank you very much, Anthony. So very good information you have provided, and thanks a lot once again.
Now I will continue in our native language. We are going to talk in Urdu, Hindi. You might not understand, but you might be the part of this Zoom. तो Okay. जी दोस्तों, अभी यस, थैंक यू वेरी मच। तो अभी एंथनी हमारे साथ थे। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी कराया कि पिछले 10 साल से ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और मीका एक लाइसेंस है जो यूरोप का बड़ा ऑथेंटिक लाइसेंस माना जाता है। और वो कहते हैं कि जो पहली कंपनी वहां पे रजिस्टर हुई थी उसका मैं पार्ट था। और यहाँ पर एक्सचेंज ऑन के अंदर जो हैं वो एंथनी काम कर रहे हैं एज ए चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। और CISO हैं यहाँ पर। और वो बता रहे थे कि दो चीजों को हम देखते हैं। एक जो है वो ऑपरेशनल सिक्योरिटी, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताई हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दूसरा साइबर सिक्योरिटी को, जो इन ऑपरेशनल सिक्योरिटी है उसमें कंप्लाइंसेस होते हैं, यानी आपने काम करना है तो आपके पास जो है वो उसकी समझ लें कि एक लाइसेंसेस, परमिशंस, KYCs, आपका इंफॉर्मेशन डाटा, और ये सारी चीजें ऑपरेशनल सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। और उसमें फॉर एग्जांपल ये है कि उन्होंने एक एग्जांपल दी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनका इंफॉर्मेशन या डाटा जो है वो आपने सुना होगा, बड़े बड़े इस तरह के इश्यूज हुए जहां पर इंफॉर्मेशन या डाटा जो था यूजर्स का वो लीक हो गया, जिससे बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप इन सारी चीजों को सिक्योर करें। और उन्होंने कहा कि इस वक्त एक्सचेंज ऑन के लिए वो दो बड़े लाइसेंसेस पे काम कर रहे हैं। एक जो है वो यूरोप का मीका, उस पर काम जारी है, और दूसरा UAE का लाइसेंस जो है वो वारा। उसकी डिटेल्स उन्होंने ये बताई कि ये कोई सिंपल रेगुलेशन नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता कि यार आपने जो है ना वो एक फॉर्म लिया, उस पर टिक कर दिया कि अच्छा ये हम करेंगे, आप हमें इजाजत दे दें। बल्कि ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो आपको मॉनिटर किया जाता है, और जिस प्रोसेस के दौरान आपको प्रूव करना होता है कि जो आप कह रहे हैं आप वैसा ही करेंगे। यानी इसकी मिसाल मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं। जिस तरह से एरोप्लेन के लिए जब उस मॉड्यूल होते हैं, बल्कि इवन कार की ड्राइविंग में भी अब मॉड्यूल हैं जिससे आप लर्निंग करते हैं। तो इसी तरह ये है कि जब आप अभी मीका या जब आप वारा अप्लाई करते हैं तो वो आपको कॉन्स्टेंटली आपसे जो है वो आपको मॉनिटर करते हैं कि आप कैसे मैनेज करेंगे। यही वजह है कि अभी आप देख रहे हैं कि एक्सचेंज ऑन जिस फेज में जा रही है, जिस पेस पे जा रही है, उस फेज के अंदर ये रिक्वायरमेंट थी। हमारे साथ पहले आप जानते हैं ना, एक्सचेंज ऑन एक टाइम से है, लेकिन कभी आपको एक्सचेंज ऑन की टीम के अंदर इतने लोग नहीं मिले अभी। बल्कि मैं अगले जो एक्सटेमी के सेशंस होंगे उनमें जो है वो बाकी भी जो टीम है जो काम कर रही है एक्सचेंज ऑन पे, जो एक्सचेंज ऑन के टीम मेंबर्स गिने जाते हैं जो इन लाइसेंसेज में मेंशन्ड हैं, उनकी काबिलियत, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स और ये सारी चीजें, और ये वेरीफाइएबल होती हैं। तो इसलिए ये सारी टीम जो काम कर रही है, मैं कोशिश करूंगा कि एक्सडेमी के प्लेटफॉर्म से वो हमारे साथ रहें और हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और ये इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सचेंज ऑन जो है वो प्रोडक्ट है। यानी उस आज के दिन में हम लोगों को एक्सचेंज ऑन के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज ऑन के बारे में बताते हैं, एक्सचेंज ऑन को प्रमोट करते हैं, एक्सचेंज ऑन पे आने वाले हम स्पॉट के फीचर के बारे में लोगों को बताते हैं कि एक बहुत अच्छा और यूनिक फीचर होगा। एक्सचेंज ऑन के P2P के बारे में लोगों से डिस्कस करते हैं कि जो करंट P2P के अंदर चैलेंजेस हैं वो एक्सचेंज ऑन जो P2P लेकर आ रहा है उसमें वो चैलेंजेस नहीं रहेंगे। इसी तरह हम एक्सचेंज ऑन के फ्यूचर्स के बारे में बात करते हैं कि ये जीरो लिक्विडेशन कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। तो ये यूनिक चीजें हम बता रहे होते हैं। हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग के बारे में हम बताते हैं कि ऐसी आर्बिट्राज ट्रेडिंग दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर रहा। कोई जो एक्सचेंज है जो इस कदर ज्यादा जो है वो रेगुलेशन कर रही हो या इस कदर ज्यादा इन डेप्थ काम कर रही हो, अभी तक किसी भी ऐसे ने प्लेटफॉर्म ने जो है वो आर्बिट्राज का ऑप्शन नहीं दिया। लोग बॉट्स बनाते हैं, कंपनीज बॉट्स बनाती हैं, लेकिन वो पर्सनली यूज के लिए बनाते हैं। वो अपने यूजर के साथ नहीं शेयर करते, अपने बॉट्स को रेंट पर नहीं देते, या अपने बॉट्स की एक्सपेंशन के लिए वो सिर्फ अपनी जात तक रहते हैं। लेकिन जो एक्सचेंज ऑन का मॉडल है आप जानते हैं, वो मॉडल ये है कि मिलकर सब प्रोग्रेस करें, टुगेदर वी ऑल ग्रो वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हर एक के पास ऑप्शन मौजूद है। मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं चाहूं तो 1000 बॉट्स रेंट पे ले लूं, आप चाहें 2000 बॉट्स रेंट पे ले लें, कोई चाहे एक बॉट रेंट पे ले ले। तो वो स्किल्स जो हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल लेवल पर नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सचेंज ऑन जो है ये ऑफर देता है आर्बिट्राज ट्रेडिंग के अंदर। हमारे पास
तो ये हमारे लिए प्रोडक्ट का ये नॉलेज, क्योंकि एक्सचेंज ऑन हमारा प्रोडक्ट है, एक्सचेंज ऑन के साथ हम में से मैं नहीं समझता कोई ऐसा भी जुड़ा हुआ है, होंगे शायद थोड़े होंगे जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो टेम्परेरीली एसोसिएटेड हैं। अदरवाइज एक्सचेंज ऑन के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो एक्सचेंज ऑन का फुल स्कोप देखते हैं। एक्सचेंज ऑन बीइंग एन एक्सचेंज कितनी यूजफुल है। आप लोगों के शायद इल्म में है कि नहीं है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अर्ली स्टेजेस के ऊपर बड़ी एक्सचेंजेस को पकड़ा, यानी बाइनेंस हो, क्रैकन हो, एमईएक्सी हो, कूकॉइन हो, कॉइन बेस हो, जिन्होंने भी अर्ली स्टेज के ऊपर जब ये लॉन्च हो रही थी या जब ये प्रमोट हो रही थी या जब ये हाईलाइट हो रही थी, तो जिन्होंने भी इनको एक्सचेंजेस को यूज किया और साथ इसको एज एन एफिलिएट प्रमोट भी किया, उन तमाम लोगों की आज बहुत बड़ी बड़ी इनकम है। हालांकि वहां आर्बिट्राज ट्रेडिंग से कोई इनकम नहीं होती, लेकिन जस्ट बिकॉज यूजर डिपॉजिट करते हैं, यूजर ट्रेड करते हैं, यानी आपके रेफरल से 2-4 हजार लोग किसी एक्सचेंज के ऊपर मौजूद हैं और वो वहां पर डिपॉजिट कर रहे हैं, वहां पर ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी किस्म की ट्रेड कर रहे हैं, आपका एफिलिएट का एक चेक बन रहा होता है। तो यहां पर सिर्फ ये नहीं है कि कोई आर्बिट्राज, आर्बिट्राज तो एक पार्ट है। मैं अगर ज्यादा से ज्यादा भी रेट करूं तो मैं समझता हूं कि आर्बिट्राज जब ये एक्सचेंज पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी, यानी जब इस एक्सचेंज के बारे में अभी आप देख रहे हैं ना, इसकी चीजें प्रोसेस में हैं। मुझे आज फिर एक न्यूज मिली कि कुछ डेवलपमेंट हुई है कॉइन मार्केट कैप के हवाले से। तो ये इस तरह से, यानी एक्सचेंज जो है वो अपनी बीइंग एन एक्सचेंज, जो उसकी रेगुलेशंस हैं या जो उसकी लिस्टिंग्स हैं, एक और जगह पर भी ये लिस्ट हुई, वो भी मेरे पास न्यूज आई थी कल परसों के अंदर। तो इस तरह से ये है कि एक्सचेंज अपना बीइंग एक्सचेंज उसका एक ऑपरेशन है, और उसका जो आर्बिट्राज है मैं समझता हूं ये सिर्फ 10% है, 100% नहीं है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज आपका जितना भी बड़ा हो जाएगा, आपका आर्बिट्राज आपकी एक्सचेंज का हमेशा जो है वो 10% ही रहेगा, मैं समझता हूं। ये शायद इससे भी कम होता चला जाए। आप किसी भी एक्सचेंज को देखें ना, कोई भी नॉर्मल एक्सचेंज है, वो उसके पास इनकम के बहुत सारे जरिए होते हैं। यानी अगर आप एक्सचेंज की बात करें, फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी अगर ट्रेडिंग करता है तो आपको पता है कि स्पॉट की ट्रेडिंग करते हुए मेकर फीस और टेकर फीस दोनों ली जाती हैं। यानी अगर आप किसी भी कॉइन को खरीदने आएंगे तो तब भी आपको एक छोटी सी फीस पे करना पड़ेगी, आप बेचने आएंगे तब भी एक फीस पे करना पड़ेगी। आप देखें ऑन एन एवरेज हर एक यूजर रोजाना के $2-4-5 जो है वो पे कर रहा होता है एक्सचेंज को। एवरी यूजर उसको $2-4-5 पे करने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ खरीदना है, कुछ ना कुछ बेचना है। ये मैं एवरेज बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े पैसों से ट्रेडिंग करते हैं, उनकी बाइंग और सेलिंग में 100-100, $150-150 फीस कटती है। यानी एक बंदा $50,000 का ऑर्डर लगा रहा है, 70,000 का, 2 लाख का ऑर्डर लगा रहा है, तो फीस ज्यादा कटती है। और जब छोटी ट्रेड्स लग रही होती हैं 10 सेंट फी, 20 सेंट, 5 सेंट टाइप फीस भी कटती हैं। तो आप समझिए कि किसी भी एक एक्सचेंज के लिए जितने यूजर इस एक्सचेंज के हैं ना, जिस दिन ये स्पॉट ट्रेडिंग शुरू करा दे, आप बॉट्स की इनकम को तो अलग रख दीजिए ना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके पास अपनी प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम बात कर रहे होते हैं ना, कोई भी यूजर जब किसी दूसरे को कॉन्फिडेंस से बताता है तो वो कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है। और वो नॉलेज ये कहता है कि एक्सचेंज ऑन को एक रेगुलेटेड एक्सचेंज, एक ऑथेंटिक एक्सचेंज के तौर पे चलने से जो इनकम होगी वो आर्बिट्राज जितना भी बड़ा हो जाए उसका 10% रहेगी। तो इसलिए कभी कभी जब कोई चैलेंज आता है तो हमें ये घबराहट होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं एक्सचेंज ऑन का मूड बदल गया है। तो ऐसा हो नहीं सकता। एक्सचेंज ऑन कल स्पॉट शुरू करा दे तो एक्सचेंज ऑन $1 मिलियन डेली का सिर्फ फीसिस में ले सकती है। हर एक यूजर को $2-4 की फीस पे करनी पड़ जाती है। 10 सेंट यहां पे दिए, 20 सेंट वहां पे दिए। इसका स्पॉट स्टार्ट हो जाए तो आपको पता है इसके स्पॉट के ऊपर ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके स्पॉट पे बीटीसी हो, इथेरियम हो, जो है वो बीएनबी हो, सोलाना हो और बीएफआईसी ना हो। ऐसा तो नहीं होगा कि इसके जो है वो स्पॉट के अंदर जो है वो पोलका डॉट हो, इसके स्पॉट में सुई हो, इसके स्पॉट में लिंक हो, इसके स्पॉट में जो है वो दूसरे क्वाइंस हो, लेकिन इसके स्पॉट में बीएलवी ना हो। तो आपके पास आपके अपने टोकन्स और दूसरे टोकन्स जब लिस्ट होते हैं और फिर नए टोकन्स लिस्ट होने हैं, सीएमसी पे आने की देर है। जैसे ही आप सीएमसी पे रेगुलेट हो जाएंगे, अभी से इस वक्त मुझे पता चला था कि 15 से 20 टोकन्स ने रिक्वेस्ट कर रखी है। यानी जैसे ही सीएमसी पे लिस्टिंग होगी तो उसके बाद आपका जो है वो जो टोकन्स हैं वो आपके पास लिस्ट होने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसी एक्सचेंज चाहिए होती है जिस एक्सचेंज, जो एक्सचेंज सीएमसी पे लिस्टेड होगी ना, वो टोकन ही सीएमसी पे आ पाएगा। यानी आप एक टोकन को एक ऐसी एक्सचेंज पे ट्रेड करवाते हो ना जो आपने घर में बनाई है। फॉर एग्जाम्पल वो सीएमसी पे लिस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब होगा कि वहां पर टोकन लिस्ट नहीं होंगे और वो टोकन सीएमसी पर नहीं दिखेंगे।
तो इस तरह जो है वो एक्सचेंज ऑन का जो पूरा मॉडल है, जब आप उसको जहन में रखते हैं, उस सिनेरियो को सोचते हैं कि यार मैं एक्सचेंज ऑन को प्रमोट कर रहा हूं, बेशक मैं वेलकम पैकेज के जरिए ला रहा हूं, कोई किसी यूजर के पैसे नहीं लग रहे, बेशक मैं यूजर को सिर्फ ज्वाइन ही करवा रहा हूं, इसलिए कभी कभी हम ये कहते हैं कि यार यूजर को सिर्फ ज्वाइन ही कर, थोड़ा सा गाइड करके कि आने वाले वक्त की एक सुपर एक्सचेंज आने जा रही है, बस सिर्फ साइन अप कर लो, कुछ मत करो, सिर्फ साइन अप ही करवा दीजिए, उसको बॉट भी मत बोलिए कि बॉट भी ले ले फॉर एग्जांपल, तो तब भी आपको पता है कि आपने अपना एक एफिलिएट क्रिएट कर लिया है, आपका एक एफिलिएट मौजूद है। जैसे ही आपके एक्सचेंज के ऊपर यूनिक किस्म के अच्छे बड़े छोटे हर किस्म के कॉइन्स लॉन्च होते हैं, लोगों को उनको बाय करने के लिए आपके एक्सचेंज पे आना पड़ता है, तो वही यूजर आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद आएगा, ये तो हमने देख लिया ना। हम सब जानते हैं कि लोगों ने अपनी ओपिनियन चेंज की है, लोगों ने अपनी राय बदली है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो की ट्रेडिंग के बारे में, यानी वो जिनको नाम सुनना पसंद नहीं था, वो आज बड़े बड़े बायर्स हैं। जेपी मॉर्गन, अभी आप जो लोग मेरे भाई सिंगापुर में थे उनको पता है कि एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग थी, जो जेपी मॉर्गन का शायद एशिया का हेडक्वार्टर है, इतनी बड़ी कंपनी है, ट्रिलियंस डॉलर कंपनी है वो। और वो कहा करते थे रोजाना, जब बीटीसी 1000 का था, 500 का था, 1400 का था, 2000 का था, वो कहते थे इट्स अ बबल, इट्स गोइंग टू बस्ट, बस खत्म होने वाला, खत्म होने वाला, खत्म होने वाला। और 35-40 हजार डॉलर पे जब पहुंचा तो दे स्टार्टेड बाइंग, आज वो दुनिया के टॉप 20 बायर्स में है। तो ओपिनियन चेंज होती है, और ओपिनियन चेंज होती है इंफॉर्मेशन के साथ। आज भी जिन लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है, और किसी भी चीज के बारे में हो सकती है, तो जो जो इंफॉर्मेशन आती है, जो जो आपके पास नॉलेज आता है, जो जो आपको उस चीज का फायदा समझ में आता है कि हाँ इसका मेरे लिए कोई फायदा है। नॉर्मली ये होता है कि जब हमें किसी चीज में फायदा नहीं दिखता तो हम नहीं जानते, हम उस चीज को अडॉप्ट नहीं करते, हमें लगता है यार ये लेस वैल्यूएबल है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अगर आपको कोई, आप किसी एक मुल्क में हैं और कोई आपको इनवाइट करे कि दूसरे मुल्क आओ, तुम्हें चाट खिलाते हैं, तुम्हें दही भल्ले खिलाते हैं, तुम्हें जो है वो बड़ा अच्छा जो है ना वेज पुलाव बना हुआ है वो खिलाते हैं, तो आप क्यों जाएंगे? लेकिन आपको कोई कोई इंसेंटिव समझ में आए तो फ्लाइटें भरी पड़ी हैं, रोजाना करोड़ों लोग दुनिया। जा रहे हो या दफ्तर अपने ऑफिस जा रहे हो या अपने काम पे जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, तो उसके पीछे एक रीजन होता है। तो लोग ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिर्फ आर्बिट्राज का ऑप्शन मौजूद है और कुछ नहीं हो रहा। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त अभी जिनसे हमने बात की, एंथनी से बात की, ही इज नॉट वर्किंग ऑन आर्बिट्राज प्रोग्रामिंग एंड बॉट्स, नहीं, वो एक्सचेंज की ओवरऑल कंप्लायंसेस के ऊपर, उसकी ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, उसके ओवरऑल जो है वो ऑपरेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि एक्सचेंज जो है उसका एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसके पूरे फ्रेमवर्क की एक सिक्योरिटी है। सिर्फ आर्बिट्राज एक पार्ट है, और हमारे लिए खुशी की बात यह है, हमारे लिए अच्छी बात यह है कि बिल्कुल अर्ली स्टेज के ऊपर हम आर्बिट्राज के फीचर की वजह से लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना। आपको पता है कि इस वक्त ऑलरेडी 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा यूजर हो चुके हैं, 1.5 पौने 2 लाख के करीब यूजर्स हैं ऑलरेडी। और आपके वेलकम पैकेज को भी ऑलमोस्ट शायद 90,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं, ये शायद 100,000 हो चुके हों, ये मेरे पास लास्ट अपडेट थी 90,000 की। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अपने आर्बिट्राज की वजह से, ये आपका एक तरह से मार्केटिंग भी हो गया हुआ है,
और उसके साथ साथ ये है कि आर्बिट्राज आपको बेनिफिट्स दे रहा है, आप सबको पता है कि इसका बेनिफिट है। और आप यकीन करें कि ये इस पे जिस तरह से ग्रेजुअली ट्रस्ट आ रहा है ना, नॉर्मली क्या होता है कि हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें नॉर्मली इस तरह के परसेंटेजेस जो है वो शायद कभी कभी महसूस होता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि किसी ऐसी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं जिन्होंने कोई अच्छा बिजनेस नहीं किया है या जिन्होंने एंड रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम उन कंट्रीज के लोग, अभी रिसेंटली संजय जी अगर इस मीटिंग में है तो बता सकते हैं, हमने एक जो है वो कैनेडियन कंपनी के साथ मीटिंग की जो ऑलरेडी वहां पर बिटकॉइन की एटीएम चला रहे हैं। वो एक्सचेंज ऑन के साथ, एक्सचेंज ऑन का व्हाइट लेबल लेने के लिए जो है उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और देवर इंटरेस्टेड क्योंकि उनके मुल्क में 1 साल का 2-3% मिलता है। यानी वहां पर जो नॉर्मल आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो यू जस्ट गेट 2-3% एनुअल, सालाना बुनियादों पे 2-3% मिल रहा होता है। और हम जिस कंपनी के साथ हैं या जिस आर्बिट्राज के साथ हैं, हमारे पास वो बॉट्स मौजूद हैं कि जिनकी कैपेसिटी इंक्रीज की जाए तो वो वक्त भी आ सकता है कि हम शायद 2-3% रोजाना का भी निकाल सकें। तो ये एक फर्क है जिस फर्क की वजह से आपको जो है वो ग्लोबल अटेंशन और बहुत ज्यादा मिल रही है, सिर्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड विद द रेगुलेशंस। क्योंकि रेगुलेशंस ही होती हैं किसी भी कंपनी के लिए, जो है वो लोगों का ट्रस्ट जो है वो टाइम के साथ बनता है, वक्त के साथ बनता है, और साथ ही साथ रेगुलेटर्स के पास जितना ज्यादा आप रेगुलेटर्स के साथ काम कर रहे होते हैं उतना ज्यादा आपका जो है वो लोगों की नजरों में वो बन रहा होता है, ट्रस्ट बन रहा होता है। यानी जिसने 10 दिन पहले ज्वाइन किया है उसका ट्रस्ट लेवल और है, और जिसने आज से 8 महीने पहले किया था उसका ट्रस्ट लेवल और है, उसका ट्रस्ट लेवल ज्यादा है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो हमें सबको समझनी चाहिए, वो ये है कि हम जब किसी भी चीज को डिसाइड कर लेते हैं ना, जब कोई फैसला कर लेते हैं ना, तो सबसे ज्यादा वक्त उस फैसला करने पे लेना होता है। मैं नहीं समझता कि रोजाना की बुनियाद पे हम अपने फैसलों को देखें। हमें फैसला करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना चाहिए, डिसाइड करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना चाहिए। उसके बाद वो गलत हो तब भी हमारा फैसला है, वो सही हो तब भी हमारा फैसला है, फिर उसका फायदा हो तो तब भी हमारा है, अगर उसका कोई नुकसान हो तब भी हमारा है। तो इसलिए किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी बिजनेस में जाने के लिए ये डिसीजन लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब आप डिसाइड कर लें फिर आप मुड़ कर ना देखें। अगर आप बार बार मुड़कर देखेंगे, आपको पता है इस चीज का कि जब ड्राइवर्स नए नए होते हैं तो उनके एक्सीडेंट्स क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि वो बैक मिरर बहुत देखते हैं, वो पीछे बहुत देखते हैं। पीछे नहीं देखना होता, आपको आगे देखना होता है। आपको अगर ट्रैफिक के रूल्स पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो आपके आगे है। जिसने गाड़ी खुदा ना खास्ता आपके पीछे मारी है वो रिस्पॉन्सिबल है, और आपने अगर किसी को ठोक दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगले वाले को आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं करार देंगे। तो इस तरह यह है कि आपको आगे देखना होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आपने आगे देखना है, फर्दर देखना होता है, आपने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। और आगे जब बढ़ते हैं तो चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस। यानी कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं मिल सकता हमको जिसके अंदर चैलेंजेस ना हो। एवरी बिजनेस हैज चैलेंजेस, तमाम बिजनेसेस के चैलेंजेस हैं। अभी जब ये सारी वर्किंग हो रही है ना एक्सॉन मोबाइल के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिंदगी में हमें नहीं पता थी। हमें लगता है कि यार एक मोबाइल फोन अगर पॉपुलर है वो तो सुबह शाम बिकता होगा। अब हमें पता लग रहा है कि उसको सप्लाई के चैलेंजेस हैं, उसकी रिक्वायरमेंट होती है हर महीने 2 लाख फोन की, लेकिन वो 1 लाख फोन इंपोर्ट कर पा रहा है या 1 लाख फोन मैन्युफैक्चर कर पा रहा है, उसके पास चैलेंजेस हैं। तो ये यानी हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई चैलेंज है, कोई ना कोई इश्यूज मौजूद रहते हैं। आपको अभी जब हमने इनसे एंथनी से बात की तो ये एक नया कॉन्फिडेंस है हमारे पास कि हमारी साइबर सिक्योरिटी और हमारी ऑपरेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काम चल रहा है। आप सबको नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक धमाकेदार न्यूज बता देता हूं। आज से कोई 1.5-2 साल पहले जब आर्बिट्राज स्टार्ट नहीं हुआ था, उस वक्त आपकी एक्सचेंज के ऊपर एक बहुत सुवियर किस्म का एक जो है वो हैकिंग अटेम्प्ट हुआ था, और उस हैकिंग अटेम्प्ट के अंदर जो है वो आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई और आपकी एक्सचेंज ने को $1.3 मिलियन लूज कर दिए। तो ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। ये आपको उस वक्त बिल्कुल ना बताया गया, ना आपको उसका कोई नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी ने उस नुकसान को बियर किया, कंपनी ने वो जो है वो लॉस जो है वो बियर किया। तो लॉसेस बिजनेस के अंदर होते हैं।
तो अभी इसीलिए इस वक्त जो है वो प्रोफेशनल्स के साथ पूरी चीजों को लेकर के पूरा एक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क बना करके काम किया जा रहा है। कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं लगाना कि यार ये सॉफ्टवेयर है तो ये सिक्योरिटी करता रहेगा, उसका एक पूरा फ्रेमवर्क बनाना होता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, आप एक ऐसी सोसाइटी बनाते हैं जिसमें घर हैं, और एक ऑप्शन ये है कि आप उसका एक पूरा सिक्योरिटी प्लान बनाते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक वॉल होगी, उस वॉल के ऊपर कुछ हम सिक्योरिटी लगाएंगे, उस वॉल के ऊपर शायद हमें जो है वो एक्स्ट्रा कुछ जो है वो लेयर्स क्रिएट करनी पड़े, हमें इसका एक गेट रखना पड़ेगा, हर आदमी आने वाले को चेक करना पड़ेगा, हर आदमी की आईडी चेक करनी पड़ेगी, अंदर किसको मिलने जाना है इसका ट्रैक रखना पड़ेगा, कब आया था, कब गया था, किस गाड़ी पे आया था, किस चीज पे आया था, वो सब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं पूरा फ्रेमवर्क। और जब फ्रेमवर्क नहीं बनाते तो फिर ये होता है कि चार बंदे रखे हुए हैं जो घूमते फिरते रहे, ये सिक्योरिटी है जी हमारी, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के फिर रहे होंगे, दिस इज आवर सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में और सिक्योरिटी में फर्क होता है। तो इस वक्त पूरी एक्सचेंज का एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बन रहा है, क्योंकि आप उम्मीद करिए कि जब आप सीएमसी पे आ जाएंगे, आप स्पॉट शुरू करा देंगे, आप फ्यूचर शुरू करा देंगे, तो हमें ये पता है कि इस एक्सचेंज के पास जो कम्युनिटी की ताकत है, वो ताकत इस एक्सचेंज को दुनिया की टॉप 10 या 5 एक्सचेंजेस में लाने की सलाहियत रखती है। एक्सचेंजेस टॉप पे पता कैसे आती हैं? नंबर ऑफ यूजर और वॉल्यूम से। नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं और आपके पास वॉल्यूम कितना है। तो आप जितने ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जितने ज्यादा, आप समझिए इसको कि आपका कोई भाई है, वो तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, तो आपको फायदा होता ही है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। भाई तो भाई है, आपका कोई कजन तरक्की करे, कजन तो कजन है, आपका कोई दोस्त तरक्की करे, ग्रो करे, रिलेशंस बनाए, रिस्पेक्ट कमाए, तो आपको भी उसका बेनिफिट होता है कि नहीं होता। इसी तरह हम सब के लिए ये बेनिफिट है जब एक्सचेंज ग्रो करती है। जब एक्सचेंज ग्रो करेगी, एक्सचेंज सीएमसी पे लिस्ट होगी, एक्सचेंज पे और यूजर आएंगे, एक्सचेंज पे और टोकन्स आएंगे, एक्सचेंज रिच होगी, एक्सचेंज अपनी सिक्योरिटी पे पैसा लगाएगी, एक्सचेंज बाकी चीजों पर पैसा लगाएगी, तो इसका मतलब हो गया कि हम सब भी साथ ही ग्रो करेंगे। क्योंकि आज हम अगर एक्सचेंज के साथ हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल के दिन में और इससे भी अच्छे टाइम के अंदर भी हम एक्सचेंज के साथ ही होंगे। अभी हमारे साथ हमारी एक ग्लोबल लीडर मौजूद हैं। आप में से कुछ लोगों से उनका पहले से तारुफ है, एक दफा पहले भी हमने सेशन किया था। मैं चाहूंगा इस सेशन के इसको खत्म करने से पहले मैं चाहूंगा चंद एक लफ्ज जो है उनसे सुने। डॉक्टर फिजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फिजा, ओवर टू यू, प्लीज। आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? Hi, good evening, everybody. Thank you, Z, for introducing me. Welcome. Xchangeon itself, as you can see, it's a great, great platform. I myself have joined as well, and I believe I have already met a majority of you already, but if you haven't, I'm Dr. Fiza Khan, originally from the UK. I reside between Dubai and the UK, so I work here on Xchangeon, and Alhamdulillah, we've built a great community. Like I said, myself, have invested into Xchangeon as well. We're working more internationally now, so we're bringing a lot of our clients in from the Turkey side. We've got Switzerland clients joining us. We have a huge network coming in tomorrow. We've got almost 6-7 new people from different parts of the world who will be also investing and joining into Xchangeon. So this has become an everyday thing for us, where we are bringing in clients every single day, joining at them every single day, who are bringing in their own community as well. So inshallah, the plan is exactly what Z said. It's not just about bringing the customers or the clients or the community. It's not just about the investment and bringing the mass order. The most important thing is when anybody comes is, what's our security? How are we going to be protected? How do you guys be protected? Especially when you have, a license of exchange or, anything. And like Z said, this is the very first, maybe one of the only platforms that I'm aware of being used upon. So of course, all I can say is jump on board. I mean, if you're already doing it, amazing. You guys are what is making Xchangeon grow as big as it is. But at the same time, it's going to be even bigger. People still need to be educated, understand this. And this is exactly what Z and the whole team is doing. They're building a platform. The platform will turn into standardization. And then from that, it will become a global sensation. So thank you so much for your time, everybody. I will pass it back on to Z, and I look forward to hearing anything and everyone, and hopefully see you guys really soon. Take care. Thank you very much. Thank you for the precious words.
और इसके साथ ही आज के सेशन को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सब अपना ख्याल रखिए। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप तमाम दोस्त जो भी मेरे सेशन को अटेंड करते हैं, इस सेशंस को ज्वाइन करते हैं, आप सब हमेशा मेरी दिली दुआओं में रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोबारा मिलते हैं